Good morning to all my dear students. Today we are going to start our next topic, and our next topic is a poem that is known as the ball poem. So before we start, let's talk about the poet. The poet of the ball poem is John Barryman. John Barryman, again, he was an American poet as well as scholar, and his best creation was that he was best known for the dream songs. He's famous for writing the dream songs. It's a name of a book. He has written the dream songs in 1969. In 1969 he had written that, and it is a sequence of 385 poems. मीन्स जो वो बुक उन्होंने लिखी है द ड्रीम सॉन्ग्स, उसके अंदर उन्होंने 385 पोइम्स लिखी है. एंड ही दैट बुक, ड्यू टू दैट बुक ही वॉन द पुलिट्जर प्राइज़. और उसी बुक की वजह से उनको कौन सा प्राइज़ मिला है? पुलिट्जर प्राइज़. पुलिट्जर प्राइज़ क्या होता है? इट्स अ अवार्ड इन अमेरिका that has been given to the people who had done a great achievement in the newspaper, magazine and online journalism, and those who had done a great work in the field of literature. So he won a Pulitzer Prize also. तो जो जॉन बैरीमन थे उनको पुलिट्जर प्राइज से भी अवॉर्डेड उनको किया गया था. एंड मोर ओवर दैट ही ऑल्सो वॉन द नेशनल बुक अवार्ड. He was also a winner of National Book Award. So this was the introduction of the poet, and let's start the poem. Don't forget to remember the name of the poet, because sometimes not sometimes, always one question comes in the exam, like who is the poet and which poem that this extract comes from. Got it? So let's come to the poem, that is the ball poem. Before I start the poem, let me tell you a brief introduction about this poem. जो ball poem है, like we all are having the ball, and the same way a boy is having a boy had a ball. जो boy थी उसके पास एक जो boy था उसके पास एक ball थी, and that ball he has some kind of attachment with that ball. उसके जो boy था उसकी काफ़ी attachment थी उस ball के साथ. Suddenly क्या होता है? He lost his ball due to his negligence, or maybe knowingly or unknowingly he lost his ball. जो उसकी ball है वो उससे गुम हो जाती है. Now he is very sad. जो boy है वो बहुत ज़्यादा sad है. And now the poet is saying that everybody has to face such kind of losses in their life. जो लॉसेस है हर एक इंसान को अपनी लाइफ में जो है वो फेस करने पड़ते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉस द बॉय लर्न हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो बॉय है उसको अपनी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ में आती है. एंड ही हैज़ टू लर्न लाइक हाउ टू कॉप अप विद द लॉस. उसको सीखना पड़ेगा कि जो लॉस है उसके साथ कैसे कॉप अप करना है, हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर द लॉस एंड हाउ टू मूव ऑन इन हिज लाइफ. कि किस तरीके से जो लॉस है उसको भुलाकर उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा. Because that is the reality of life, that we all have to lose one or the another thing one day or the another day. So that is the theme of the poem. ये theme है the ball poem की. So let's start reading it. इसको एक बार read कर लेते हैं, समझ लेते हैं. But before we read, some sentences are given to you. Let's read them. A boy loses a ball. जो boy है उसकी जो ball है वो गुम हो जाती है. ही इज़ वेरी अपसेट. वो बहुत अपसेट है, उदास है. अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच. कहते हैं जो बॉल है उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, मतलब प्राइस ज़्यादा नहीं है. नॉर इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय द अनदर बॉल. ना ही उसके लिए मुश्किल है कि वो कोई दूसरी बॉल ख़रीद ले. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. फिर वो जो बॉय है वो इतना अपसेट क्यों है? रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बिन लॉस्ट. ये जो पोएम है इसको रीड करना है और सोचना है कि जो पोइट है वो क्या सोचता है कि मतलब क्या चीज़ उसकी गुम हो गई है. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. और जो बॉय है उसको क्या सीखना है, जो उसने लूज़ कर दिया उससे उसको क्या सीखना है. दैट वी हैव टू गेट टू नो थ्रू दिस पोएम. सो लेट्स स्टार्ट इट. इसको स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water.
कहते ही जस्ट वांट टू नो द रिएक्शन ऑफ द बॉय, जो पोइट है वो जो बॉय है उसका रिएक्शन जानना चाहता है, और इसलिए कहते हैं कि वो जो बॉय है अब वो क्या करेगा, मतलब वो इज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने कि अपनी जो बॉल है उसको खो दिया है। वट इज़ ही टू डू, अब वो क्या करेगा। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग। तो पोइट कहते हैं कि मैंने देखा था वो जो बॉल थी, मैरिली मीन्स हैप्पीली, मैरिली हेयर मीन्स हैप्पीली, हैप्पीली वो कहते हैं कि मैंने वो जो बॉल थी उसको हैप्पीली बाउंसिंग डाउन, बाउंसिंग होता है उछलना, जैसे बॉल इस तरीके से उछल के जाती है ना, तो दैट इज़ नॉन एज बाउंसिंग। उछलने को क्या बोलता है, बाउंसिंग। कहते हैं मैंने देखा था कि वो जो बॉल थी वो गुम होने से पहले कहाँ पर थी, इट वॉज बाउंसिंग इन द स्ट्रीट, वो खुशी खुशी से स्ट्रीट में बाउंस कर रही थी, उछल रही थी। एंड देन मैरिली ओवर, वो कहता है ऐसे खुशी खुशी से, देयर इट इज़ इन द वाटर, सडनली इट फेल इन टू द वाटर, अचानक से क्या हो जाती है वो पानी के अंदर गिर जाती है। Now you understand what the poet wants to convey in the first stanza. In the first stanza, the poet wants to know the reaction of the boy, that what the boy will do now when he lost his ball, कि वो जो लड़का है वो क्या करेगा जिसकी जो बॉल है वो गुम हो गई है। The ball was associated with his childhood memories. जो बॉल है वो किससे रिलेटेड है, उसके जो बचपन की यादें हैं उससे रिलेटेड है। यानी कि वो यहाँ पर कह रहा है कि किस तरीके से जो हमारा बचपन है वो बहुत जल्दी बीत जाता है, और किस तरीके से वो जो बॉल थी और जिसके साथ वो अभी खेल रहा था बचपन में, सडनली ही हैज़ लॉस्ट इट, अचानक से वो जो उसकी बॉल है वो क्या हो जाती है, गुम हो जाती है, राइट। इट वॉज मैरिली बाउंसिंग इन द स्ट्रीट, कुछ देर पहले वो स्ट्रीट के अंदर, गली के अंदर उछल रही थी मैरिली। सम डेज अगो ही वॉज अ चाइल्ड एंड ही वॉज प्लेइंग इन द स्ट्रीट, बट सडनली ही हैज़ टू फेस द लॉस। लेकिन अचानक से क्या होता है, वो जो बॉल है वो किसके अंदर गिर जाती है, पानी के अंदर गिर जाती है, जिसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। एंड सडनली फर्स्ट टाइम उसको क्या रियलाइज़ होता है, फर्स्ट टाइम वो जो लॉस है वो उसको देखता है, उसको फेस करता है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर द बॉल्स, पॉइंट कहता है कि मतलब उसको कहने का कोई भी फ़ायदा नहीं कि और भी काफ़ी सारी बॉल्स हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट मीन्स जो फाइनली, ग्रीफ मीन्स सैडनेस, जो ग्रीफ है उसका मतलब क्या है, सैडनेस। कहता है कि जो शेकिंग, शेकिंग मीन्स हिला देने वाला, जो हिला देने वाली जो सैडनेस है उसने बॉय को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिक्स मीन्स इट हैज़ कम टू इन हिज लाइफ एंड फिक्सेस द बॉय, मतलब उसके अंदर अपना घर बना चुके हैं। वो जो अल्टीमेट ग्रीफ है, जो सैडनेस है, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं बैठ गई, फिक्स हो गई है। एंड ही स्टैंड्स रिजिड, और वो कैसे खड़ा हुआ है, रिजिड खड़ा हुआ है। रिजिड का क्या मतलब होता है, टू स्टैंड एट वन प्लेस, एक जगह पर खड़ा होना, स्टैंड एट वन प्लेस, ठीक है। अब वो क्या हो गया, वो रिजिड हो गया, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, वो वहीं पर खड़ा हुआ है। ही इज़ ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग मीन शेकिंग, और वो क्या कर रहा है, हिल रहा है, मतलब अंदर से वो बहुत ज़्यादा हिल चुका है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग मीन्स घूरना। व्हाट डज इट मीन बाय स्टेयरिंग, स्टेयरिंग मीन्स घूरना किसी चीज़ को, टू गेज एट समवन। कहता है कि जैसे ही वो जो बॉल है वो पानी के अंदर चली गई है, एक जो ग्रीफ है, एक जो सैडनेस है, उसने जो बॉय है उसको वो पकड़ लिया है। इट हैज़ कैचेस द बॉय एंड द बॉय इज स्टैंडिंग रिजिड। रिजिड मीन्स ही वॉज स्टैंडिंग देयर विदाउट मूविंग, ही वॉज ट्रैवलिंग, वो बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा हिल रहा है। एंड स्टेयरिंग डाउन, और वो क्या कर रहा है, सिर्फ नीचे ही देखता जा रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कहता, और जो भी उसके यंग डेज थे, जो चाइल्डहुड डेज थे, वो किसके अंदर चले गए, दे ऑल वेंट इन टू द हार्बर। हार्बर मीन्स द डॉक, जहाँ पर हम शिप्स को बांधते हैं, या फिर पोर्ट, पोर्ट जहाँ पर मतलब शिप्स जो है उनको पार्क किया जाता है। कहते हैं ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, उसके जो यंग डेज हैं वो कहाँ पर चले गए, हार्बर के अंदर चले गए। वेयर इज़ बॉल वेंट, जहाँ पर किसी जो बॉल है वो गिर चुकी है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड का मतलब वैसे तो होता है इंटरफेयर करना, तो हियर इट मीन्स आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कहते हैं यहाँ पर मैं उसको इंटरफेयर नहीं कर सकता। अ डाइम, डाइम इज़ अ अमेरिकन करेंसी, जो अमेरिका की करेंसी होती है। जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं, उनके यहाँ पर क्या होते हैं, सेंट्स, सेंट्स को क्या बोला जाता है, डाइम। तो कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। अ डाइम अनदर बॉल, कहते हैं जो दूसरी बॉल है उसकी कॉस्ट कितनी है, सिर्फ
एक डाइम मतलब फ्यू सेंट्स हैं इज़ वर्थलेस, लेकिन वो जो दूसरी बॉल होगी वो उसकी कैसी होगी, उसके लिए वर्थलेस होगी, इट डजंट हैव एनी वर्थ। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको क्या आता है, अपनी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ में आती है। तो वो कहते हैं कि मतलब एज ही लॉस्ट हिज बॉल, जैसे जो बॉय अपनी बॉल को गुम कर देता है, ही स्टैंड्स देयर रिजिड विदाउट मूविंग एंड ही इज शेकिंग फ्रॉम इनसाइड, ही जस्ट स्टेयरिंग डाउन एट द वाटर बिकॉज ऑल हिज यंग डेज हियर मीन्स ऑल हिज जो चाइल्डहुड की जो मेमोरीज़ हैं, ऑल हिज चाइल्डहुड डेज दे वेंट इन टू द हार्बर, वो किसके अंदर चली गई हैं, पानी के अंदर चली गई हैं, मतलब वो कहीं पर गुम हो गए हैं। कहता है इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू से हिम टू परचेज अनदर बॉल, कहता है कोई फ़ायदा नहीं है उसको ये कहने का कि तुम जो है वो दूसरी बॉल ख़रीद लो। वाई इट इज़ वर्थलेस टू से टू परचेज अनदर बॉल, बिकॉज द बॉल दैट इज़ ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज वर एसोसिएटेड विद दैट, क्योंकि जो बॉल उसने गुम की है उसके साथ उसकी जो बचपन की यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कुछ वो एक नॉर्मल सी बॉल थी जिसने उसको खो दिया है, लेकिन उसी बॉल के साथ उसकी जो बचपन की यादें जो जुड़ी हुई थी, जो चाइल्डहुड मेमोरीज उसकी एसोसिएटेड थी, दे हैव ऑल्सो लॉस्ट, वो भी क्या हो गई हैं, उसी के साथ गुम हो गए हैं। नाउ ही इज़ वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा सैड है, वहीं पे खड़ा हुआ है बिना हिले हुए, ही इज़ ट्रैवलिंग, ही इज़ शेकिंग, मतलब हिल गया बहुत अंदर से, एंड ही इज़ जस्ट स्टेयरिंग डाउन एट द वाटर, और जो पानी है वो उसी के अंदर देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज मीन्स ऑल हिज चाइल्डहुड मेमोरीज दे हैड वेंट इन टू द हार्बर जहाँ पर हम शिप्स को पार करते हैं, हियर इट मीन्स द वाटर। तो जो इसके यंग डेज़ हैं वो किसके अंदर चले गए, पानी के अंदर चले गए। कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं उसको ये कहने का कि और भी बहुत सारी बॉल्स हैं, बिकॉज अदर बॉल्स आर द वर्थलेस, क्योंकि जो दूसरी बॉल्स हैं वो कैसी हैं, वर्थलेस है, उसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको जो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो समझ में आती है। व्हाट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ आवर थिंग्स, कि जो हमारी चीज़ें हैं हमें उनको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना चाहिए। यहाँ पर जो बॉल है वो किसको शो करता है, यहाँ पर जो बॉल है वो हमारे रिलेशनशिप्स को भी शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उसको हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे रिलेशंस हैं जो हमारे बचपन से जुड़े हुए हैं, सडनली अगर हम उनको खो देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा कोई बहुत क्लोज़ रिलेटिव है, हम उसको खो देते हैं, तो कहते हैं रिलेटिव तो और भी बहुत सारे हैं, बट वी कैन नॉट परचेज इट विथ मनी, लेकिन जो चला गया क्या हम उसको वापस ला सकते हैं, कैन वी ब्रिंग दैट पर्सन बैक, वी कैन नॉट ब्रिंग दैट पर्सन बैक। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ फेसिंग द लॉस, पहली बार उसको जो लॉस है वो हुआ है। क्या लॉस हुआ है कि उसने जो अपनी बॉल है उसको खो दिया है, और कहते हैं कि बहुत सारी बॉल्स दे आर अवेलेबल इन द मार्केट बट दे ऑल आर वर्थलेस फॉर हिम, लेकिन वो सारी बॉल कैसी उसके लिए वर्थलेस है, क्योंकि जो पैसा है उसके लिए वो वाली बॉल वापस नहीं ला सकता जो कि उसकी गुम हो गई हैं। फर्स्ट टाइम ही इज़ रियलाइजिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही नीड्स टू बी मोर केयरफुल अबाउट हिज थिंग्स, कि उसको जो अपनी चीज़ें हैं उसके बारे में और ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स जो चीज़ें हमारी होती हैं, मतलब जिसके ऊपर हमारी ऑनरशिप होती है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन हियर इट मीन्स इन द वर्ल्ड ऑफ द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, मटीरियलिस्टिक थिंग्स मीन्स जो पैसा है, घर है, गाड़ी है, दीज आर द मटीरियलिस्टिक थिंग। सो इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स इन द वर्ल्ड ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, पीपल विल टेक बॉल्स, जो लोग हैं वो क्या करेंगे, आपकी जो बॉल्स हैं उसको छीन लेंगे, मतलब जो भी आपकी सबसे प्यारी चीज़ होगी वो उसको आपसे छीन लिया जाएगा। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, मतलब जो लॉस है इट्स अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर लाइफ, तो जो बॉल है वो हमेशा क्या हो जाएगी, गुम हो जाएगी। लिटिल बॉय उसको समझा रहा है कि छोटे बच्चे जो मतलब ये पूरी दुनिया इट्स फुल ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड इन दिस वर्ल्ड द पीपल दे आर वेरी सेल्फिश एंड फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट दे कैन स्नैच योर बॉल, वो आपकी जो बॉल है आपसे छीन लेंगे, आपकी जो बॉल है वो आपसे छीन ली जाएगी, और जो बॉल है वो हमेशा गुम भी हो जाएगी। मतलब लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब जो लॉस है वो भी हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो इस तरह की जो बॉल्स हैं, हमारी जो सबसे क्लोज चीज़ है, उनको हमसे छीन भी लिया जाएगा और वो हमसे गुम भी हो जाएगी। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कहते जो हमसे चीज़ें चली गई, जो लॉस हमारा हो गया लाइफ में, कोई भी चीज़ उसको वापस नहीं कर सकती, कोई भी चीज़ उसको रिटर्न नहीं कर सकती। नो
सेम थिंग इज सेइंग दैट नो वन बाइज अ बॉल बैक, मतलब वो जो बॉल उसकी पानी में गिर गई है जिससे कि उसकी जो बचपन की मेमोरीज़ हैं वो जुड़ी हुई है, क्या कोई पैसा उसको वापस ला सकता है? नो, नो वन कैन बाय इट बैक, कोई भी उसको वापस परचेज़ नहीं कर सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, कहते जो मनी है वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल कैसे है? द मनी कैन परचेज़ यू सम ऑफ द मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जो पैसा है वो आपके लिए बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें तो ख़रीद सकता है, लेकिन वो आपके रिलेशंस नहीं ख़रीद पाएगा, वो आपके लिए आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो नहीं ख़रीद पाएगा। जो वो बॉल है जो वो खो चुका है, दैट हैज़ ऑलरेडी बीन वेंट इनटू द वाटर, जो पानी में जा चुकी है, पैसा उसको वापस नहीं ख़रीद सकता। हाँ, जो पैसा है वो दूसरी बॉल्स ख़रीद सकता है, बट जो दूसरी बॉल्स है वो उसके लिए वर्थलेस है, क्योंकि उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ थी वो किससे जुड़ी हुई थी? जो बॉल पानी में चली गई है। द सेम थिंग द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट द मनी इज़ एक्सटर्नल, जो मनी है वो एक्सटर्नल है, एंड इट कैन नॉट परचेज दैट बॉल बैक, और वो जो बॉल है वो उसको वापस परचेज नहीं कर सकता। इनफैक्ट नो बडी कैन ब्रिंग दैट बॉल बैक, कोई भी वो जो बॉल गुम हो चुकी है उसको वापस नहीं ला सकता है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। डेस्परेट हियर मीन्स द होपलेस, कहता है कि अब वो सीख रहा है, ही इज़ लर्निंग, नाउ ही इज़ लर्निंग, और उसकी जो डेस्परेट आइज़ है, उसकी जो होपलेस आइज़ हैं, उनके पीछे से ही इज़ लर्निंग अ लेसन, वो एक लेसन सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स नॉलेज, जिसका कि क्या मतलब होता है? नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी हियर इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का क्या मीनिंग है? अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, कि उसको जो लॉस का नेचर है वो उसको सीख रहा है। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी में इट्स अ ग्रीक वर्ड, उसका मतलब होता है नॉलेज। नाउ ही इज़ लर्निंग अ लेसन, नाउ ही इज़ लर्निंग द नेचर ऑफ लॉस, और वो जो नेचर है लॉस का उसको सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कहता हाउ टू स्टैंड अप, कहता वो ये सीख रहा है कि जब हमें लॉस हो जाता है, व्हेन वी आर लूजिंग समथिंग इन आवर लाइफ, हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर दैट, कि किस तरीके से हमें अपने आप को संभालना है और फिर से खड़ा होना है। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई लॉस हो गया तो हम उसी के ऊपर रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ेंगे। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, हम सबको ये सीखना पड़ता है। वी ऑल हैव टू लर्न दैट हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरीके से हमें फिर से खड़ा होना है, एंड हाउ टू मूव ऑन इन आवर लाइफ, और हमारे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कहता है कि वो अभी जान रहा है चीज़ों को जो कि मतलब हर एक इंसान है जिसको कि हर इंसान को अपनी लाइफ में वो जानना होता है। मीन्स एवरीबडी मीन्स हूसोएवर हैज़ कम टू इन दिस वर्ल्ड, जो भी इस दुनिया में आया है, एवरीबडी हैज़ फेस द लॉस, सब ने उस लॉस को कभी ना कभी देखा है और सीखा है कि वो जो लॉस है उसके बाद किस तरीके से खड़ा होना है, हाउ टू स्टैंड अप। कहता है हर इंसान उसको जानता आया है, और एक ना एक दिन सबको वो जो लॉस है उसको फेस करना है, और उसको मतलब उसके बाद उसको फिर से खड़ा होना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, कहते हैं और काफ़ी सारे लोग तो पहले से ही जानते हैं कि किस तरीके से मतलब जो लॉस है उसको फेस करना है, एंड हाउ टू स्टैंड अप आफ्टर दैट, एंड हाउ टू मूव ऑन इन आवर लाइफ। गॉट इट? So in the last stanza it is saying that he is learning with his hopeless eyes that everybody what he is learning the nature of loss, that everybody has to face a loss in their life, and once they have to face loss in their life, have to stand up after that, किस तरीके से मतलब जो लॉस है उससे बाहर निकल के हमें जो अपनी लाइफ में आया है आगे बढ़ना है, खड़ा होना है। कहते हैं एवरी मैन नोज वन डे, हर एक इंसान को एक ना एक दिन वो जो लॉस है उसको फेस करना है, उससे सीखना है। यानी कि लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रायल्स एंड टर्बुलेशन, जो लाइफ है वो किससे भरी हुई है? ट्रायल्स एंड टर्बुलेशन से भरी हुई है। सभी को किसी ना किसी तरीके का जो दुख है, जो लॉस है उसको फेस करना है, उसके बाद खड़ा होना है और आगे बढ़ना है। तो जो बॉय है वो अभी इसको सीख रहा है दैट हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरीके से इसको स्टैंड अप करना है, एंड हाउ टू मूव ऑन इन हिज लाइफ, बिकॉज ही वॉज़ वेरी सैड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सैड था, तो अभी वो उसको सीख रहा है कि किस तरीके से उसको मूव ऑन करना है। कहता है इन मोस्ट नो मैनी डेज़, कहता है जो काफ़ी सारे लोग हैं वो तो उसको काफ़ी दिनों से जानते हैं इस बात को कि हाउ टू स्टैंड अप, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सीख लिया है कि किस तरीके से उनको अपनी लाइफ में खड़ा होना है और आगे बढ़ना है।
यानी कि जो लॉस हमें हो गया हमें सिर्फ उसके ऊपर रिपेंट नहीं करना है, वी नीड नॉट टू रिपेंट ऑन इट एंड वी हैव टू स्टैंड अप, हमें खड़ा होना है, संभलना है और आगे बढ़ना है. सो दैट इज़ द पोएम. यही पोएम है एंड इट्स अ शॉर्ट वन बट गिव्स अ गुड मैसेज. बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है. लेट मी रिवाइज वट वी हैव लर्न इन दिस पोएम कि इस पोएम में हमने क्या सीखा है. देयर इज़ अ बॉय हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल एंड विद दैट बॉल हिज चाइल्डहुड मेमोरी वर एसोसिएटेड. उसकी जो बॉल थी उसके साथ उसकी जो बचपन की यादें थी वो जुड़ी हुई थी. सडनली इट वेंट इनटू द वाटर. अचानक से वो पानी में गिर जाती है. द पोइट वॉन्ट टू नो द रिएक्शन ऑफ हिम. और उसका रिएक्शन जानना चाहता है एंड ही इज सेइंग दैट इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू से हिम टू परचेज अनदर बॉल बिकॉज ऑल हिज मेमोरीज वर एसोसिएटेड विद दैट. क्योंकि जितनी भी उसकी मेमोरीज थी वो उस बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए ये कहना उसको बेकार होगा कि और भी काफ़ी सारी जो बॉल है वो अवेलेबल है. कहते हैं उसकी वो हार्डली वो एक डाइम की होगी, कुछ सेंट्स की होगी, बट डजंट मैटर. कहता है कि ड्यू टू द लॉस ऑफ दैट बॉल ही इज़ इन ग्रेट ग्रीव. कहता है कि एक जो बहुत हिला देने वाली जो सैडनेस है उसने वो जो बॉय है उसको फिक्स कर दिया, उसको पकड़ लिया एंड ही स्टैंड्स रिजिड एंड ही इज स्टैंडिंग रिजिड विदाउट एनी मूवमेंट. और वो अंदर से ना बहुत हिल गया है. ही इज ट्रैम्बलिंग फ्रॉम इनसाइड, मीन्स अंदर से बहुत हिल चुका है वो. एंड ही इज जस्ट स्टेयरिंग डाउन एट द वाटर. मतलब वो सिर्फ वो पानी में देखे ही जा रहा है वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर कि उसकी जो बॉल है वो गिर गई है. एंड नाउ फर्स्ट टाइम ही इज़ सेंसिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. पहली बार उसको जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है. व्हाट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स? हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स लाइक हाउ टू टेक केयर ऑफ हिज थिंग्स, कि अपनी चीज़ों को किस तरीके से उसको संभाल कर रखना है. कहते हैं इन दिस वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड पीपल दे विल टेक योर बॉल. जो लोग हैं वो आपसे आपकी बॉल छीन लेंगे, मतलब जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचा देंगे. एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज. जो आपकी बहुत ही प्यारी चीज़ें होंगी वो मतलब इट्स नेचुरल कि वो गुम हो जाएंगी. वो उनको आपसे या तो छीन लिया जाएगा या फिर वो नेचुरली आपसे गुम हो जाएंगी. मनी इज़ एक्सटर्नल. कहते हैं जो मनी है इट कैन नॉट परचेज ऑल द थिंग्स. मनी कैन परचेज द मटीरियलिस्टिक थिंग्स. जो मनी है वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स तो वो खरीद सकता है, बट वो आपके लिए रिलेशनशिप नहीं खरीद पाएगा. वो आपके लिए जो आपकी मेमोरीज़ हैं उनको नहीं खरीद पाएगा. तो कहते हैं जो मनी है वो एक्सटर्नल है और इट कैन नॉट परचेज योर बॉल बैक. तो वो आपकी जो बॉल है उसको वापस नहीं खरीद पाएगा. मनी क्या कोई भी नहीं खरीद पाएगा. तो ही इज़ लर्निंग अ लेसन. यहाँ पर वो एक लेसन लर्न कर रहा है. व्हाट द लेसन ही इज़ लर्निंग दैट ही हैज़ टू स्टैंड अप, कि किस तरीके से उसको खड़ा होना है. हाउ ही हैज़ टू बेयर दिस लॉस एंड किस तरीके से उसको जो लॉस है उसको सहन करना है और अपनी लाइफ में खड़े होकर आगे बढ़ना है. कहता मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो अबाउट द लॉस फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज. बहुत सारे लोगों को ये जो लॉस है उसके बारे में पहले काफ़ी दिनों से पता है और वो जो बॉय है वो भी सीख रहा है. और काफ़ी सारे लोग तो उस बात को काफ़ी दिनों से जानते भी हैं कि किस तरीके से जो लॉस है उसके साथ कॉप अप करना है और आगे लाइफ में बढ़ना है. सो दैट वाज योर पोएम एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. It's a very good poem that gives you a very good message that how to stand up after a loss and how to move on in your life. So that's all for today. Thank you and have a nice day.